Good morning, everyone. The summarized balance sheets of Mrs. A Limited and B Limited as on 31/3/2014 were as under. Balance sheet is given, liabilities, asset. Now see, there are two old companies who are getting amalgamated into a new company. So this is the situation of pure amalgamation. There are 40,000 equity shares of rupees 10 each fully paid of A Limited and 30,000 equity shares of rupees 10 each fully paid of B Limited. 40,000 shares in A Limited, 30,000 shares in B Limited. General reserve, profit and loss account, trade payable, debentures is there in B Limited. Then there are assets, freehold property, plant and machinery, motor vehicle, trade receivable, inventory. Mrs. A Limited and B Limited carry on business of similar nature. So A Limited and B Limited is carrying business of similar nature and they agreed to amalgamate. A new company, AB Limited, Mrs. AB Limited is formed to take over the assets and liabilities of A Limited and B Limited on the following basis. So what has happened here? Mrs. A and B Limited, they were two separate businesses who were carrying a similar nature of business and they agreed to amalgamate. A new company is formed, AB Limited, and it is formed taking the assets and liabilities of A and B Limited on the following basis. Assets and liabilities are to be taken at book value. Book value में assets and liabilities को लेना है with the exception goodwill A Limited and B Limited. A का है 1,40,000, B का है 40,000. Plant and machinery of A Limited was to be valued at 1 lakh. जिसका नया वैल्यू दिया है उसका नया वैल्यू लेंगे एंड जिसका नया वैल्यू नहीं लिया उसका ओल्ड वैल्यू लेंगे. द डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड, सिर्फ बी लिमिटेड में डिबेंचर है, are to be discharged by issue of 6% debentures of AB Limited at a premium of 5%. So नया वैल्यू में जो डिबेंचर्स AB Limited में B Limited के जो 1,20,000 डिबेंचर्स है, they will be discharged 6% debentures in AB Limited at a premium of 5%. So 1,20,000 plus 5% करो, आपको डिबेंचर्स का नया वैल्यू मिल जाएगा. What you are supposed to do, you are required to compute the basis on which shares in AB Limited will be issued to the shareholders of the existing company, assuming nominal value of each share of AB Limited is ₹10. मतलब AB Limited में जो न्यू शेयर होगा वो 10 रुपीज का है. सबको सिर्फ जितना भी PC है that will be discharged by giving 10 rupees shares, equity shares. Draw up a balance sheet of AB Limited as on 1st April 2014 when amalgamation is completed. तो हमें एक बैलेंस, हमें पहले तो PC कैलकुलेट करना है, उसको डिस्चार्ज करना है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज में एंड हमें अमालगमेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AB Limited for acquisition of Mrs. A Limited and B Limited. So हमें क्या करना है? We will have to prepare journal entries in the books of AB Limited. Journal entries in the books of AB Limited for acquisition of Mrs. A Limited and B Limited. मतलब हमें न्यू, मैंने तुम लोग को ट्रांसफरी कंपनी का जर्नल एंट्रीज लिखाया था, एक्सप्लेन किया था. दैट जर्नल एंट्रीज वी विल हैव टू प्रिपेयर हियर. सो अमालगमेशन में पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. तो हम क्या करेंगे? ऑल असेट्स टेकन ओवर बाय
AB Limited, the name of the new purchasing company is AB Limited in revised or book value, in revised और बुक वैल्यू, जिसका रिवाइज वैल्यू नहीं दिया उसका बुक वैल्यू लेंगे. तो लेट अस सी व्हाट ऑल असेट्स आर देयर. तो असेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसका नया वैल्यू नहीं है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओल्ड वैल्यू लिखेंगे. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ओल्ड वैल्यू, व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू? 3,00,000 2,40,000. सो यहाँ लिखेंगे 3,00,000 एंड 2,40,000. दोनों को ऐड करो, हाउ मच इट विल बी? 5,40,000. कीप योर कैलसीस इन हैंड ताकि यू विल गिव मी द आंसर. प्लांट एंड मशीनरी, नया वैल्यू ऑफ लीज गिवन फॉर ए लिमिटेड 1,00,000. देखो पहले ए लिमिटेड का प्लांट एंड मशीनरी 60,000 था, बट नाउ दे से ए लिमिटेड का जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1,00,000 का रहेगा. सो प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड का 1,00,000, बी लिमिटेड का नया वैल्यू नहीं दिया, बी लिमिटेड का नया वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? वही 40,000 लेंगे ओल्ड वैल्यू. सो दिस विल बी 1,40,000. फिर वी हैव मोटर व्हीकल, इसका नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू ही लेना है. अभी जितने भी सारे असेट्स हैं उसका नया वैल्यू नहीं दिया तो हमें ओल्ड वैल्यू लेना है. नया वैल्यू नहीं लिया तो ओल्ड वैल्यू लेना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एट वंस बिकॉज ओल्ड नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू ही लेना है. सो इसके बाद ओके तो ओके सो व्हाट आई विल डू ना, मेरे को इसके फिगर चाहिए बिकॉज बुक वैल्यू है तो यही से वी कैन टेक कंट्रोल सी मोटर व्हीकल एंड ऑल का पेस्ट कर लेते हैं इधर. एंड सेम वे नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम बी लिमिटेड के भी असेट्स का कॉपी पेस्ट कर लेंगे बिकॉज बुक वैल्यू है. हम डायरेक्टली वी कैन डू द कॉपी पेस्ट. नाउ add all this. 30 20 is 50. This is 2,80,000. This is how much? 3,80,000 and 4,10,000. Correct? 3,80,000 and 4,10,000. और ये है 1,20,000. तो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल चाहिए ए का. जस्ट टेक द टोटल एंड टेल मी क्या है रहेगा आंसर. फिर आई वांट लेस बी क्या है? ऑल एक्सटर्नल असेट्स, सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन ओवर by AB Limited is the name of the new or the purchasing company in revised or book value. तो let us see क्या हमारे पास है. हमारे पास शेयर कैपिटल है, वो तो इंटरनल है. रिजर्व भी इंटरनल है. हमारे पास दो ही लाइबिलिटी है, ट्रेड पेएबल एंड 6% डिबेंचर. ट्रेड पेएबल 210 130. ट्रेड पेएबल इज 210 130. तो आई विल राइट 2,10,000 एंड 1,30,000. दोनों को ऐड किया तो इट इज 3,40,000. फिर हमारे पास है डिबेंचर्स 6% डिबेंचर्स. 6% डिबेंचर्स का नया वैल्यू दिया है
6% debentures are to be discharged by issue of 6% debentures of AB Limited. Internal liability, we are doing amalgamation from last year and we know that जो नया फर्म है वो क्या करता है, वो कंपनी के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेता है, लेकिन जो इंटरनल लाइबिलिटी है वो है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स आपस में बांट के अपने घर लेके जाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो होगा उसको परचेसिंग फर्म will accept it and later will discharge it at its convenience. तो यहाँ पे by 6% debentures at a 5% प्रीमियम, तो 5% प्रीमियम लेना है. तो कितना है देखो, डिबेंचर इट इज 1,20,000, सिर्फ बी लिमिटेड में है, तो 1,20,000 को 5% प्रीमियम में लेना है. तो 1,20,000 प्लस 5% करो, तुमको मिलेगा 1,26,000 और इधर हो जाएगा 1,26,000 और यहाँ पे तो डिबेंचर है ही नहीं. और यहाँ पे एक और चीज है जो हमने लिखा ही नहीं, दैट वाज गुडविल. देखो गुडविल है यहाँ पे, वो हमने लिया ही नहीं है. 1,40,000 एंड 40,000, सो यहाँ पे लिखेंगे 1,40,000 एंड 40,000. और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लेते हैं, बिकॉज इंटरनल लाइबिलिटी जो है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. जो रिजर्व्स होता है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर कोई लॉसेस होगा तो भी हमने कल के सम में भी देखा, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स. एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के लिए पीसी मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पीसी मिलता है. तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ऑल दिस. ऐड करो 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 80,000 प्लस 1,40,000. कितना होगा ये? इज इट कमिंग टू 10,80,000? डू द कैलकुलेशन. एंड सेम वे यहाँ पे कितना हो रहा है, इज इट कमिंग टू 6,40,000? दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 16 लाख या 17,20,000. और यहाँ पे इसका भी टोटल कितना हो जाएगा, 2,10,000 और ये हो जाएगा 2,56,000. ये हो जाएगा 4,66,000. Now give me the purchase consideration. Purchase consideration is A minus B. Purchase consideration is A minus B. So how much it is? 10,80,000 minus 2,10,000. How much is it coming? 8,70,000. Same way, 6,40,000 minus 2,56,000 is coming to 3,84,000. तो हमें पीसी मिल गया. अभी हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप है डिस्चार्ज ऑफ पीसी. तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कंपनी का पीसी के बदले में उनको क्या मिलेगा, पीसी के बदले में 10 रुपीज का इक्विटी शेयर मिलेगा. तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 10, 87,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. उनको क्या मिलने वाला है, ये शेयर के लिए
उनका जो पीसी है उसके लिए उनको मिलेगा डिवाइड बाई 10, दैट इज उनको 10 रुपीज का शेयर्स मिलने वाला है। तो दिस विल बी 38,400 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. This is the PC discharged. This is the PC discharged. डन। पीसी भी ले लिया हमने, नया वैल्यू असेट का जिधर दिया है उधर लिया, जिधर नया वैल्यू नहीं लिया उधर जूना वैल्यू लिया, बुक वैल्यू लिया, फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस किया, तो हमें मिल गया पीसी। एंड क्वेश्चन में बोला हाउ टू डिस्चार्ज द पीसी, 10 रुपीज का शेयर्स दे के डिस्चार्ज करना है, क्वेश्चन में दिया है। देखो कंपनी को कैसे कंप्यूट द शेयर्स ऑन विच AB लिमिटेड विल बी issued to shareholders of existing company, assuming nominal value of each share will be of AB will be 10 rupees। ऐसे दिया है, उसके हिसाब से हमने ये फाइंड आउट किया। अब इसके बाद व्हाट वी विल डू, जर्नल एंट्रीज है। नेक्स्ट वन इज जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला हमेशा बिजनेस परचेज का एंट्री होता है। सबसे पहला एंट्री इज फॉर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे दो बिजनेस है जो बंद हो रहा है, लिक्विडेटर्स, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट, एंड दूसरा टू लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट। तो कितना है पीसी, इधर क्या लिखना है, पीसी का वैल्यू लिखना है 8,70,000 एंड 3,84,000, दोनों को ऐड किया तो इट इज कमिंग टू 12,54,000। इधर भी दोनों को ऐड करके आएगा 12,54,000। तो हमें बिजनेस परचेज मिल गया। दोनों कंपनी को जो AB लिमिटेड है वो दो बिजनेस को परचेज कर रहा था। AB लिमिटेड इज व्हाट, AB लिमिटेड इज द परचेसिंग कंपनी, AB लिमिटेड इज द purchasing company, and AB Limited has purchased the businesses of two companies, A Limited and B Limited। उनको इतना पैसा दिया 8,70,000 and 3,84,000 being business purchased। So being business purchase करके लिखा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभी हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेटल करना पड़ता है। तो टेक ओवर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का सेकेंड एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, ए लिमिटेड का सेपरेटली करेंगे एंड बी लिमिटेड का सेपरेटली करेंगे। तो क्या क्या असेट्स है जरा देखते हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड में क्या क्या असेट्स एंड लाइबिलिटीज है। सो आई विल टेक ऑल दोस असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितना भी असेट्स हैं वो सब ले लेंगे। देखो ये सारा असेट नया कंपनी ने टेक ओवर किया है। नया कंपनी ने क्या किया, सब असेट्स को लिया है, सारे असेट्स को लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये सब असेट्स को ले लेंगे। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड नहीं, ये नहीं से चाहिए। सच तो एक एक लिख लेती मैं। तो ये सारा एसेट्स ले लिया सबका। बी ए लिमिटेड का पहला कर रहे हैं ना, तो ए लिमिटेड का सारा एसेट का वैल्यू ले लिया, पीसी का वैल्यू लेते हैं। इधर न्यू कंपनी ने कितने में सारे एसेट्स को टेक ओवर किया, न्यू कंपनी ने कितने में सारे एसेट्स को टेक ओवर किया। तो दिस इज द असेट्स,
दिस इज द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स है और हमारे पास बस, बिकॉज ए लिमिटेड में डिबेंचर्स नहीं है ना, सिर्फ ट्रेड पेबल है। और एक और चीज इधर आएगा, दैट इज टू बिजनेस परचेज। ये बिजनेस परचेज जो डेबिट में है ना, अभी उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। बिजनेस परचेज कितना है ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज? ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज है पीसी, हाँ वी हैव टू राइट द पीसी ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का पीसी है 8,70,000 और ट्रेड पेबल्स ए लिमिटेड का कितना है 2,10,000। सो आई विल राइट हियर 2,10,000। देखो तुम जब इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे ना, तुमको सेम टैली होगा। जस्ट चेक, being assets and liabilities, being assets and liabilities taken over by purchasing firm, taken over by purchasing company, firm नहीं, this is company, purchasing company। अभी जब हम लोग इसको सबको ऐड करेंगे ना, 3,00,000, 1,30,000, 2,00,000, 2,30,000, 80,000, 1,40,000, you will get the same amount as you will get by adding 2,10,000 and 8,70,000. The debit side and the credit side, you will find it to be equal. Just check, cross check whether this is coming to be equal. यहाँ पे क्या होता है पता, अगर हमारा कोई दूसरा मेथड ऑफ परचेज पीसी अगर हमने कोई दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया रहता ना, तो ये गुडविल हमारा बैलेंसिंग फिगर रहता। क्योंकि हमने नेट असेट में किया तो हमें गुडविल भी पहले से पता था, इसलिए ये टैली हो रहे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमें गुडविल मिलता है या क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो कैपिटल रिजर्व मिलता है। यहाँ पे हमने जितना असेट्स है, जितना असेट मतलब जितना असेट है उससे ज्यादा पेमेंट किया है। जो डिफरेंस है हमने गुडविल पे किया है फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। अगर हम असेट्स के लिए कम पे करते तो इट हैड बिकम कैपिटल रिजर्व। तो कभी अगर क्रेडिट, देखो अगर कभी भी डिफरेंस डेबिट में आया तो इट इज गुडविल, कभी भी डिफरेंस क्रेडिट में आया तो इट इज कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया। ये देखो तुम लोग चेक करो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसके बाद थर्ड वन में अभी हम क्या करेंगे, सेम चीज हम बी लिमिटेड के लिए करेंगे। सेम थिंग वी विल डू फॉर बी लिमिटेड। तो यहाँ पे भी ट्रेड पेबल है और बी लिमिटेड में डिबेंचर्स भी है, 6% डिबेंचर्स। जस्ट वी लेट अस चेक। तो यहाँ पे सेम अभी क्या करना है, ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी बी लिमिटेड के लिए। नहीं तो दिस इज द एडवांटेज व्हेन यू डू बाय computer, you have this cut copy option, but when you solve in the blackboard one by one you will have to write everything, so here time बच जाता है। तो यहाँ पे दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर और 6% डिबेंचर। तो अभी क्या लिखेंगे, पीसीबी लिखना है। तो बिजनेस परचेज जो डेबिट में था, अब उसको यहाँ लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट। सो ये हो जाएगा, कितना पीसी है बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड का पीसी है 3,84,000। तो ये भी हो गया। हमने बी लिमिटेड का भी सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर का एंट्री पास कर लिया। सो दिस इज ऑल्सो डन, this is also done. Now we will go to the next entry. This is for settling of this. The next entry is for PC discharged. Next entry is for PC discharged. तो हमारे पास जो ये दो लिक्विडेटर्स है ना, ये हम साथ में भी एंट्री पास कर सकते हैं या अलग से भी कर सकते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, साथ में कर लेते हैं, जो हमारे पास दोनों है ना क्रेडिट में, ये दोनों को अभी डेबिट में करना है, इसको कैंसिल करना है। लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये जो हमारे पास दो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट, ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी, हमने पीसी में क्या पे किया है वो है। तो पीसी में हमने क्या पे किया है, पीसी में हमने इक्विटी शेयर से सेटल किया है। पीसी में हमने कैसे सेटल किया, पीसी में हमने 10 रुपीज का इक्विटी शेयर देके सेटल किया, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अगर हमने पीसी में प्रेफरेंस शेयर भी दिया रहता तो हम 2 प्रेफरेंस शेयर भी बोलेंगे, अगर प्रीमियम में दिया होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलेंगे। तो कितना शेयर्स है, जरा देखो यहाँ पे कितना शेयर है, ये 87,000 और 38,400। तो कितना, ये पूरा जितना भी कैपिटल है ये हमने पूरा डिस्चार्ज किया है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 12,54,000, 12,54,000 बीइंग पीसी सेटल्ड। हमने क्या किया, कैसे सेटल किया, being purchase consideration settled या satisfied by issue of equity shares of ₹10 each in कौन सा कंपनी, AB लिमिटेड कंपनी। हमने क्या किया, पीसी, जो भी पीसी है वो कैश में नहीं दिया, जो अपना बिजनेस बेच रहे लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, हम नया कंपनी ने उनको उनके कंपनी के बदले में इक्विटी शेयर्स दिया। दे कुड गिव कैश, दे कुड गिव इक्विटी शेयर्स, दे कुड गिव एनी अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज, बट इन्होंने इक्विटी शेयर्स दिया। अब इसके बाद एक लास्ट वन है, डिबेंचर्स को नए कंपनी में क्या मिला है, डिबेंचर्स को नए कंपनी में क्या मिला है, डिबेंचर्स को देखो, ओल्ड डिबेंचर्स है यहाँ पे अपना 6% डिबेंचर्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 मिनट, ये 6% डिबेंचर्स दिखा यहाँ पे, 6% डिबेंचर्स। तो ये 6% डिबेंचर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी 6% डिबेंचर्स क्रेडिट में था, लाइबिलिटी है। अब इसको कैंसल करेंगे डेबिट, तो इसको मैं बोलूंगी ओल्ड, मतलब ये ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स है। कितना, 1,26,000। कैसे मिला 1,26,000, यहाँ पे देखो 1,26,000। इसके बदले में इनको 2 नए कंपनी में भी यही सेम डिबेंचर्स मिलने वाला है, सेम डिनोमिनेशन का, सेम ओल्ड के बदले में न्यू मिल रहा है। वो पहले उनके पास बी लिमिटेड का डिबेंचर था, अब उनके पास सेम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, पहले 1,20,000 का था। देखो, इन द old balance sheet it was for 1,20,000, but here they say that the debentures of AB Limited are discharged by issue of 6% debentures of AB Limited. B Limited के debentures को AB Limited का debenture मिला at a premium of 5%. तो हमने यहाँ पे वो revised value लिया पीसी में, 1,20,000 प्लस 5%, दैट इज 1,26,000। तो यहाँ पे हमने वो पीसी का डिबेंचर्स यहाँ पे लिखा, लेकिन अभी इनको ये डिबेंचर के बदले में न्यू डिबेंचर मिल रहा है एबी लिमिटेड का। तो बीइंग डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड, तो ये भी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आता है
सॉरी नॉट शेयर कैपिटल, क्या आता है इधर, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल, देखो इधर हमने लिखा है ऑलरेडी शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल है, तो मैं नोट्स टू अकाउंट में बताती हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट वन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमारे पास नए कंपनी का, ये एबी लिमिटेड का बैलेंस शीट है। तो एबी लिमिटेड ने क्या किया, 87,000 इक्विटी शेयर ए लिमिटेड को दिया और 38,400 जो है इक्विटी शेयर बी लिमिटेड को दिया। तो टोटल इक्विटी शेयर कितना है, देखो जर्नल एंट्री में भी है 12,54,000, इट इज 12,54,000। तो यहाँ पे चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं 87,000 प्लस 38,400, दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, आपको मिलेगा 12,000, सॉरी 12,000 नहीं, 1,25,400। आपको कितना मिलेगा दोनों को ऐड करने पे, 1,25,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये अमाउंट हो जाएगा 12,54,000। तो यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल में लिखेंगे 12,54,000। पर यहाँ पे किधर भी रिजर्व नहीं है, किधर भी, यहाँ पे नॉर्मली गुडविल हो सकता है या कैपिटल रिजर्व होता है। अगर कैपिटल रिजर्व होता तो कैपिटल रिजर्व में लिखते। दूसरा, अगर यहाँ पे हम प्रीमियम में शेयर्स इशू करते तो प्रीमियम लिखते, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी रिजर्व नहीं है। तुम लोग बोलोगे ओल्ड कंपनी में तो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट हमने क्या ट्रांसफर किया, हमने ट्रांसफर किया एबी लिमिटेड में सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ए लिमिटेड का जो जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, बी लिमिटेड का जो पीएनएल अकाउंट है, वो तो जब कंपनी बंद हुआ तो जो शेयर होल्डर्स है उनमें डिवाइड हो गया। तो ये जो रिजर्व्स है ये तो ओल्ड कंपनी में डिवाइड हो जाएगा शेयर होल्डर्स में। तो हमारे पास न्यू कंपनी में कोई भी रिजर्व नहीं है, न्यू कंपनी में कोई भी रिजर्व नहीं है। तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखते तो भी चलेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नील, बिकॉज देयर इज नो रिजर्व्स। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे बी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 6% डिबेंचर है हमारे पास, 6% डिबेंचर, देखो यहाँ पे ही लिखा है 6% न्यू डिबेंचर। कितना हो जाएगा ये, 1,26,000, कितना हो जाएगा 1,26,000। यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है। इसके बाद हम लिखेंगे सी, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में पीसी में देख सकते हैं, और यहाँ पे तो हमारे पास जर्नल एंट्री भी है, तो उसमें भी हमने कौन सा हमारे पास लाइबिलिटी है, देखो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास ट्रेड पेबल ही है, दोनों में ट्रेड पेबल है, और टोटल करके हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है लाइबिलिटी। जो नया कंपनी एबी लिमिटेड ने जो लाइबिलिटीज टेक ओवर किया ओल्ड कंपनी से, वहां पे डिबेंचर था जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा, और वहां पे ट्रेड पेबल है, दोनों को ऐड करके 3,40,000, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे
3,40,000, 3,40,000। सो इसको टोटल कर लेंगे तो लाइबिलिटी का टोटल मिलेगा। सेम वे अभी जो हम लोग करेंगे दैट विल बी असेट्स, और असेट में कैपिटल ए नॉन करंट असेट, और कैपिटल ए के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी, व्हाट डू वी से इट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट नहीं बोलते अभी, अभी ये नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, टैंजिबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो टैंजिबल में जरा देखो हमारे पास कौन सा हमारे पास असेट है जो टैंजिबल है। हमारे पास फ्री होल्ड है, प्लांट एंड मशीनरी है और मोटर व्हीकल है। अभी नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक से ज्यादा है तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 हो जाएगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस तो था ही नहीं, तो नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे आई विल राइट 2, और मेरे पास क्या है नोट्स टू अकाउंट 2 में, दैट इज नोट टू अकाउंट 2 रहेगा इंटैंजिबल। क्या है हमारे पास, टैंजिबल, टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स में हमारे पास है प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल, और इनका टोटल अमाउंट कितना है, पीसी में टोटल करके लिखा है 5,40,000, 1,40,000, 50,000। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5,40,000, 5,40,000, 1,40,000, 5,40,000, 1,40,000, और मोटर व्हीकल का टोटल है 50,000। एम आई करेक्ट? आई विल अगेन चेक, क्रॉस चेक, बराबर मैंने बराबर टोटल लिया है, 5,40,000, 1,40,000 एंड 50,000। सो ये तीनों को ऐड करो तो टोटल टैंजिबल एसेट्स मिल जाएगा। तीनों को ऐड करो, ऐड करो, कितना आ रहा है, 5,40,000, 1,40,000 विल बी 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000 प्लस 50 विल बी 7,30,000, 7,30,000। तो हमें मिल गया ये, तो यहाँ पे आई विल राइट टैंजिबल का 7,30,000, ये हो गया। फिर इंटैजिबल फिक्स एसेट में तो एक ही है, पेटेंट कॉपीराइट्स कुछ नहीं है, सिर्फ गुडविल है, सिर्फ गुडविल। तो पीसी में जाके देखो दोनों कंपनी का टोटल गुडविल कितना है, दोनों कंपनी का टोटल गुडविल कितना है, 1,80,000। सो यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन डायरेक्टली राइट 1,80,000, और इसके बाद जो है दैट विल कम करंट असेट्स। तो करंट असेट में जैसे जाके देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। करंट असेट में हमारे पास कौन सा करंट असेट है, पीसी में जाके डायरेक्टली देखते हैं, क्योंकि उधर ऐड करके लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक, तीन चीज है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, पहले इन्वेंट्री लिखेंगे, फिर उसका अमाउंट एक एक करके लिख लेंगे। सो इन्वेंट्री, दूसरा इन्वेंट्री के बाद
trade receivables. The next one, last one, cash and cash इक्विवेलेंट. तो अभी देखते हैं तीनों का टोटल अमाउंट क्या है. पीसी में ही देखेंगे. इन्वेंट्री है 4,10,000, ट्रेड रिसीवेबल है 2,80,000, कैश है 1,20,000. तो यहाँ पे इन्वेंट्री कितना मिला. इन्वेंट्री मिला हमें, इन्वेंट्री का अमाउंट है 4,10,000. फिर ट्रेड है 2,80,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,20,000. एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं. 4,10,000 है इन्वेंट्री, 4,10,000 1 मिनट, 4,10,000 है इन्वेंट्री, अनडेटेड है 2,80,000 एंड कैश बैंक है 1,20,000. तो हमने बराबर यहाँ पे पोस्टिंग किया, कॉपी करके लिखा. नाउ व्हाट वी विल डू टोटल. तो अभी हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या नहीं देखो. 12,54,000 plus 1,26,000 plus 3,40,000. How much is it coming? 17,20,000. Same way here this side also 7,30,000 plus 1,80,000 plus 4,10,000 plus 2,80,000 plus 1,20,000 should be equal to 17,20,000. Then we say our balance sheet is tally because liability side is equal to the amount in the asset side. With this sum is done. Thank you so much everyone.